And a very warm morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Leal Public School, and I'm your social science teacher. So, students, today we all are going to start our very new chapter from your geography textbook, and the name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. So, first of all, what do you mean by the term natural vegetation? Natural vegetation means plants which grows itself without any human aid. Plants grow which grows itself बिना कोई human aid के human help के जो plants naturally occur होते हैं, naturally grow होते हैं. Vegetation is the term which we use for plants. Okay, different types of plants and trees, we use this term for we use vegetation for these things. Okay, natural vegetation, plants which grow without any human aid, they grow naturally. And wildlife, the animals which live in these types of vegetation, these different types of forest. Okay, so now just look at the overview of this chapter, what we all are going to study in this chapter. We all are going to study about, we will start this chapter with the story of Salima. ठीक है, story of Salima, and she visited she was like very excited to visit the summer camp. So we will start our chapter with Salima, and we get to know about natural vegetation with this story. So what is natural vegetation? Natural growth of plant life, the plants which occurs naturally, plants which grow naturally, that is known as natural vegetation. Okay, after that we will talk about different types of natural vegetation. क्या पढ़ेंगे हम? Different types of natural vegetation. Under that we will talk about forest. Three types of natural vegetations are there: forests, grasslands and shrubs. Three types of natural vegetations are there: forests, grasslands and shrubs. And under forest we will talk about tropical forests, temperate forests, Mediterranean forest and coniferous forest. These four types of forest we will talk about. Tropical में भी हम दो अलग अलग तरीके के forest पढ़ेंगे, tropical evergreen and tropical deciduous. Temperate में भी two types के पढ़ेंगे, temperate deciduous and temperate evergreen forest. और फिर हम मेडिटेरियन और कॉन्फीरियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स. सो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, नेचुरल वेजिटेशन में. सो लेट्स स्टार्ट. सलीमा's visit to summer camp. ठीक है, Salima's visit to summer camp. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. अब सलीमा जो थी like आपकी ही एज ग्रुप की एक लड़की है सलीमा, and she was like very much excited for the about the summer camp. वो एक summer camp जो है अपने summer holidays में अपने classmates के साथ, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ समर कैंप में जा रही थी. और कहाँ पे था ये समर कैंप? ये मनाली में था ये समर कैंप. सो मनाली में जब वो ये समर कैंप अटेंड करने जा रही थी, तो जैसे जैसे बस ऊपर के साइड जा रही थी, तो उसने अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट फिजिकल रिलीफ ऑफ आवर अर्थ. ठीक है, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, plains, deserts, islands, they are different types of land. These are the different types of landforms. तो उसने देखा कि कैसे जो है landform change हो रहा है. Right now we all are living in Rajasthan. We have and in Rajasthan we have desert landform. And if we move
if we visit Manali, we see mountains there, we see hills there, right? तो वहां का लैंडफॉर्म क्या है? वो हिल्स है, माउंटेन्स है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगी, बस जैसे जैसे ऊपर जाने लगी थी, अब वो बस से ट्रैवल कर रही थी, तो बस जैसे जैसे ऊपर जाने लगी तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स जो प्लांट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो चेंज हो रहे हैं, मतलब कि अलग टाइप्स के प्लांट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इफ वी लुक, इफ वी ऑब्जर्व द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ राजस्थान, हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही झाड़ वगैरह होते हैं, श्रब्स वगैरह होते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब कि कैक्टस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। बट वो जैसे जैसे मनाली जा रही थी, उसने क्या देखा? उसने देखा कॉनिफरस ट्रीज को देखा, जो कॉनिकल शेप्स के ट्रीज होते हैं ना, अपने एकदम एक्समस ट्री के जैसे ट्री जो होते हैं, ये कोन शेप के जो ट्रीज होते हैं, उनको कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं। The deep jungles of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared. ठीक है, अब जैसे जैसे और ऊपर जाने लगी, जो जंगल्स में उसने देखा साल के ट्रीज थे, टीक के ट्रीज थे, अब धीरे धीरे वो डिसअपियर होने लग गए थे, उसे वो दिख ही नहीं रहे थे। She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. You canopies, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोपी, ठीक है। ये जो ट्राइंगल जैसा होता है ना ऊपर से, इसको हम कैनोपीज बोलते हैं। आइसक्रीम कोन खाया है ना, आइसक्रीम कोन, तो कोन की जो शेप होती है नीचे से, this shape is known as canopy. cone shaped canopies mountain slopes में उसने देखी कि इस टाइप के ट्रीज, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी कि कैनोपीज उसने देखे। She learned that those were कॉनिफरस ट्रीज, ठीक है। अब उसके साथ जो उसके क्लासमेट्स वगैरह थे और जो जो भी उनके साथ विजिट कर रहा था, तो उन्होंने बताया ये जो है वो कॉनिफरस ट्रीज है। शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज, कि ये जो लंबे लंबे जो ट्रीज हैं, ये इतने लार्ज लार्ज जो ट्रीज हैं, इस पे जो रेड कलर के, पिंक कलर के ब्यूटीफुल से जो फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर से जो फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, ये फ्लावर्स कौन से हैं? रोहोडेंड्रॉन्स हैं। क्या है? रोहोडेंड्रॉन्स, rhododendrons. These flowers are known as rhododendrons. So from Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. अब जैसे जैसे वो मनाली से ऊपर रोहतांग पास जाने लगी, व्हाट शी ऑब्जर्व्ड कि जो लैंड है वो बहुत ही छोटी छोटी ग्रास से कवर्ड है, और जो स्नो है, कुछ कुछ जगह में स्नो भी है। माइट इट मे बी सम ऑफ यू माइट हैव विजिटेड मनाली और रोहतांग पास, ठीक है। वहां पे आपने देखा होगा। आई सॉ द पिक्चर्स, मैंने कभी ट्रेवल नहीं किया, बट आई सॉ द पिक्चर्स, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स थी वो। सो द लैंड वाज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रासेस, जो लैंड है छोटी छोटी ग्रास से कवर्ड है, और जो प्लेसेस है वो स्नो से क्या है? वो फुली कवर्ड है। So let's move to the next slide and आपको दिखाते हैं कुछ pictures, images related to this Salima's story. So these are coniferous trees. देखो conical shapes है ना, कोन के जैसी शेप आती है। अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे इस ट्री को, तो कैसी कैसी शेप आ रही है? ये देखो कॉनिकल शेप आ रही है। तो ये कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, जिसकी कोन के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिन ट्रीज का, उसको हम कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं। एंड कॉनिफरस ट्रीज हमें नॉर्मली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कॉनिफरस ट्रीज हमें माउंटेन एरियाज में देखने को मिलते हैं। वहां पे जो ट्रीज होते हैं कॉनिकल शेप्स के होते हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े जो फ्लावर्स देखे थे, ठीक है, रेड और ब्यूटीफुल फ्लावर्स वो ऑब्जर्व कर रही थी। वो कहाँ पे ऑब्जर्व किए उसने? वो रोडेंड्रॉन जो ऑब्जर्व किए वो कुछ ऐसे से दिखते हैं। देखिए रोडेंड्रॉन, this is rhododendron flower. So whenever you visit Manali, और देखना वहां पे आप rhododendron मिलता है क्या, ठीक है। अगर आप देखो rhododendron, तो आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने जिसके भी साथ आप जाते हो, अंकल आंटी या किसी के साथ भी जाते हो, तो उन्हें बताना कि ये rhododendron है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना।
नेक्स्ट इज रोहतांग पास. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, वेरी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है. सो ये जो है ये रोहतांग पास है और हमें देखने को मिलता है बहुत ही स्मॉल स्मॉल ग्रास देखने को मिलती है, ठीक है. और जो प्लेसेस है वो किससे कवर्ड है, स्नो से कवर्ड है. सो दिस इज कॉन्फ्यूरियस ट्रीज, रोडेंड्रॉन एंड रोहतांग पास. साल ट्रीज और स्टीक ट्रीज भी उसने ऑब्जर्व किए थे. Okay, so with this visit what she get to know about, she get to know about coniferous trees, she get to know about small grasses, rhododendrons, sal, teak, etc. So from Salima's observation we summarize that there is a close relationship between the height of land and the character of vegetation. जैसे जैसे वो हिल्स पे जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, हिल्स पे जा रही थी, वैसे वैसे हमें देखने को मिला कि ट्रीज जो है, वेजिटेशन और लैंडफॉर्म्स का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, बहुत अच्छा रिलेशन, मतलब बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, क्लोज रिलेशन होता है. जैसे जैसे हम लैंड में ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिलता है, जो वेजिटेशंस है, जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. और मनाली से भी ऊपर जब वो रोहतांग पास गई तो हमें देखने को मिला कि ना वहां पे स्नो कवर्ड है और ग्रासेस छोटी छोटी है, ठीक है. तो हाइट के साथ साथ क्लाइमेट भी चेंज होता है, वेजिटेशन भी चेंज होता है, ठीक है. सो what is natural vegetation? Now come back to our topic, natural vegetation. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a very long time. ठीक है. अब natural vegetation क्या होता है? It refers to a plant community. जितने भी flora है, जितने भी plant communities हैं, smallest grass से लेके tallest trees तक, जितने भी नेचुरली प्लांट्स जो ग्रो करते हैं ना नेचुरली, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, जिसमें ह्यूमन एड का मतलब होता है हेल्प या फिर इंटरफेरेंस बोल दो. ह्यूमन वहां के सीड्स को ग्रो नहीं करता है, वो सारी चीजें नेचुरली ग्रो होती है. उस टाइप की प्लांट कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन. वी कॉल दोस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एज नॉट नेचुरल vegetation. So, sorry. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variations in these factors. अब जो climate हो गया, topography हो गई, altitude हो गया, land का altitude या land की height हो गया, जैसे ये vegetations जगह जगह पे it varies from place to place because of the variations in our nature. जो landforms में variations है, climate हो गया, type of topography हो गई, type of altitude of landform हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन का टाइप है, उसकी थिकनेस है, कितनी ज्यादा वहां पे प्लांट कम्युनिटी है, कितनी ज्यादा वहां पे प्लांट्स हैं, ये सारी चीज डिपेंड करती है, वहां के प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है, ठीक है. इन फैक्टर्स के वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, आपका हाइट हो गया, टोपोग्राफी हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है. Now, natural vegetation is generally classified into three broad categories. कौन सी हैं? Forests, grasslands and desertic scrubs या फिर shrubs बोल सकते हैं. आपके बुक में लिखा हुआ है shrubs, तो इसको shrubs ही देखना, ठीक है. shrubs जो हम नॉर्मली अपने राजस्थान में डेजर्ट एरिया में देखते हैं ना, shrubs, वो. Natural vegetation is broadly classified into three parts, that is forests, grasslands and shrubs. Forests, grasslands and shrubs. Now forest is divided into various types of forest. Tropical rainforest या फिर tropical evergreen forest हो गया, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट हो गया. डेसीडियस मतलब समथिंग विच शेड अवे, जो अपने ऐसे पेड़ जो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं उनको हम डेसीडियस बोलते हैं, ठीक है. तो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट,
coniferous forest. ठीक है, ये these are some types of the forest which we will discuss elaborately in our further slides. Grasslands are we will talk about two types of grasslands, tropical grasslands and temperate grasslands. This tropical is we are using this word tropical because India is a tropical country. Tropical पता है ना, हमने पढ़ा था our earth is divided into 5 main latitudes: equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. These are the 5 important latitudes: equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. And India lies here. India यहाँ पे lie करता है. Means tropic of Cancer is crossing from India. Approximately आप बोल सकते हो India के center से cross कर रहा है. तो India एक tropical country है. ठीक है, तो कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, कुछ टेम्परेट, जो टेम्परेट होता है यहाँ पे इस टाइप के एरियाज में, यहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उनको हम टेम्परेट बोलेंगे. ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस. नाउ जस्ट लुक एट द स्टोरी, अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ क्रो फैमिली, natural vegetation and wildlife. That you have been to so many places. I have only lived in this forest. Is the outside world the same? Is there an outside world at all? This is the son of this crow. Okay, and what he is asking कि पापा आप तो बहुत जगह आपने विजिट किया है, आप तो फॉरेस्ट में भी विजिट करते हो आपने, और मैं तो हमेशा से इसी फॉरेस्ट में रह रहा हूँ. क्या बाहर की दुनिया जो है, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, वो काफी डिफरेंट है? नाउ हिज सन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. Now, what his dad replied, son, there is so much you haven't seen yet. Just like us, हमने भी बहुत सारी चीजें नहीं देखी अपनी लाइफ में. ठीक है, तो बहुत सारे लोग बीकानेर से बाहर नहीं गए होंगे, बहुत सारे लोग राजस्थान में ही रहे होंगे, ये आसपास का एनवायरनमेंट ही देखा होगा. तो हमने भी बहुत सारी चीजें इस दुनिया में नहीं देखी. तो जस्ट लाइक इट, ये जो क्रो है वो अपने बेटे को क्या बोल रहा है, बेटा आपने तो बहुत सारी चीजें अभी तक नहीं देखी है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन दिस वर्ल्ड. इस पूरे संसार में बहुत अलग अलग तरीके के जो है फॉरेस्ट हैं. I will describe them to you, and when you will old enough, you will fly over there and remember of my words. मैं आपको हर एक फॉरेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, और आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे, you will fly over there, और आप मेरी बातों को ध्यान में रखोगे, याद रखोगे. Besides forests, there are also other kinds of vegetation, such as grassland, shrubs and bushes, which we will discuss later on. Okay, so natural vegetation, ये crow की family start हो गई है, तो हम अभी पहले forest पढ़ते हैं. What are forests? ठीक है, forests are huge groups of trees and plants that grow in regions with medium to hot temperature and plentiful rains. What are forests? Forests are huge groups of trees. Huge means बहुत सारा. ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत सारा, बहुत सारे trees, मतलब infinite number of trees are there in a forest. बहुत सारे forest में बहुत सारे trees और plants होते हैं जो medium से hot temperature या फिर के रीजन में ग्रो करते हैं, और जहां पे बहुत सारी रेन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट. सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट व्हिच वी आर लुकिंग एट, एंड वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लेटर ऑन. ओके, सो जस्ट लुक एट दिस लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. अब क्रो की जो स्टोरी है ये हम कंटिन्यू करते हैं. Tropical evergreen. First of all, we will discuss about tropical evergreen forest. Tropical rain forest बताया था ना, tropical evergreen forest जिसे बोलते हैं. Tropical evergreen forest, that Crow Dad is explaining about tropical evergreen forest to his crow son. Now I know how to fly properly. I want to share with you what I have learned from my dad. अब ये जो क्रो डैड है वो क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं. जो क्रो सन है वो बड़े हो चुके हैं.
और नाउ ही इज सेइंग टू अस, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं अच्छे से फ्लाई भी कर सकता हूं, और अब मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने अपने पापा से सीखा है। We are above a rainforest. Rainforest or evergreen forest, both are the same thing. We are above a rainforest. You will find such forest near the equator or the tropic. Tropics or equator. Tropical tropics क्या होता है? Sorry. ट्रॉपिक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी लिव इन लाइक ट्रॉपिकल रीजन्स, जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, या तो हमें इक्वेटर के पास वाली जगह पे, जैसे अफ्रीका हो गया, ठीक है, इंडिया के कुछ पार्ट्स हो गए, अमेरिका को कुछ पार्ट हो गया, या तो हमें इक्वेटर के पास वाले या फिर जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे हमें रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। Some of these hardwood trees are called rosewood, ebony and mahogany. Some of the trees, हम जो हमें tropical evergreen forest में कुछ trees जो देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रोजवुड, रोजवुड हो गया, एबोनी हो गया, महागोनी हो गया, और इन ट्रीज को हम हार्डवुड ट्रीज भी बोलते हैं, बिकॉज दीज ट्रीज आर द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर लाइक वेरी हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। That's why these the trees rosewood, ebony and mahogany are also known as hardwood trees. The trees don't let their leaves fall all together, and because of the thickness of their tops sunlight cannot penetrate very easily through them to reach the ground. अब देखो, the trees don't let their leaves fall all together. ये जो trees है एकदम साथ में अपने ट्रीज जो लीव्स हैं वो फॉल नहीं गिराते हैं। हमें पता है ना, कुछ ट्रीज क्या करते हैं, जैसे ऑटम आता है तो अपने पत्ते जो झाड़ देते हैं, पर ये जो ट्रीज है एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज एकदम से साथ में अपने ट्रीज के लीव्स को फॉल नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ देयर टॉप्स, वहां ऊपर के साइड में बहुत ज्यादा थिक, बहुत ज्यादा हैवी रहता है, ये जो ट्री की ग्रीनरी होती है ना काफी थिक होती है, और सनलाइट जो है एकदम नीचे तक पहुंच नहीं पाती है, ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाती है। इस वजह से क्या होता है, ये जो लीव्स हैं वो इजीली ड्रॉप आउट नहीं होती है। तो दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ लेट्स look here. Tropical evergreen forest, also known as rainforest, they occur in regions near the equator and the tropics, and they receive a heavy rainfall throughout the year. Throughout the year, like take an example of Maharashtra. इंडिया का महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, असम का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, या फिर नीचे केरला और कर्नाटका का एग्जाम्पल ले लीजिए। वहां पे बहुत मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं साल भर हमें यहाँ पे काफी बारिश देखने को मिलती है, ठीक है, कभी भी बारिश हो जाती है और साल भर हम बहुत ज्यादा बारिश देखते हैं यहाँ पे। और एक और नाम क्या है एवरग्रीन फॉरेस्ट का? रेन फॉरेस्ट। Due to the absence of a particular dry season, trees in rainforest don't shade their leaves altogether, and this is why they are called evergreen. अब देखो, कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है, जैसे समर्स पर्टिकुलरली प्रॉपर समर नहीं आती, और यहाँ के ट्री टॉप्स जो होते हैं काफी हैवी होते हैं, काफी थिक होते हैं, तो जो सनलाइट है प्रॉपरली जमीन तक नहीं पहुंचती है, इसलिए यहाँ के जो ट्रीज हैं वो साथ में अपने जो लीव्स हैं वो ड्रॉप आउट नहीं करते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। The trees in tropical evergreen rainforests grow close to each other and they have thick canopies. ठीक है, ट्री कवर ऑफ द टॉप को हमने कैनोपी बोल दिया, यहाँ पे थिक कैनोपीज होते हैं, तो सनलाइट जो है यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं डे टाइम, इवन इन द डे टाइम ऑल्सो वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, सॉरी, इसलिए इनको ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। सॉरी बेटा, यस, इंपॉर्टेंट ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट आर कौन कौन से हैं? रोजवुड, मेहगोनी, एबनी। हमने क्रोसन ने हमें ये सारी बातें बताई थी ना लास्ट स्लाइड में, कौन कौन से ट्रीज हम देख रहे हैं यहाँ पे? रोजवुड देख रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस ट्री, रोजवुड है ये। महोगनी देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल, मैंने तो सिंगल ट्री की पिक्चर्स ली है जिससे कि आपको पता चले कि ये कौन से ट्रीज हैं, ठीक है। और एबोनी, जस्ट लुक एट दिस ट्री, दिस इज mahogany एंड दिस इज एबोनी, ये एबोनी है, एंड इन्हें हम हार्डवुड ट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हार्डवुड ट्रीज ही बोलते हैं, बिकॉज द वुड ऑफ these particular trees are like very hard, that's why we call it hardwood trees. Now there is a do you know section. The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth. Can you tell why? अब जो ये जस्ट ये तो एक इमेजिनेशन है बेटा, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राजील, साउथ अमेरिका में ब्राजील एक प्लेस है और वहां पे हमें अमेज़न फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और वहां पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको लंग्स बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन क्रिएट करता है? प्लांट्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और लंग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राजील का, वो इतना हैवी और वहां इतना थिक है, अर्थ की जो हमारी 70% जो ऑक्सीजन क्रिएट होती है ना, ये ब्राजील के ट्रॉपिकल एवरग्रीन अमेज़न फॉरेस्ट से क्रिएट होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, एंड लंग्स को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट डू यू नो इज एनाकोंडा। You might have seen some of the pictures of anaconda also. Anaconda, one of the world's largest snakes, is found in the tropical rainforest. Tropical rainforest में anaconda जो है हमें मिलते हैं। It can kill and eat a large animal such as crocodile. एक crocodile मतलब क्रोकोडाइल एक ह्यूमन के जितना तो होता ही है, एक एडल्ट ह्यूमन के जितना तो होता ही है। सोचो वो एकदम जिंदा उसे निगल सकता है, ठीक है, पूरा का पूरा निगल सकता है, कितना बड़ा एनिमल है वो। सो इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। सो दिस इज these are two interesting facts, and do you know things here? Okay, हाँ। So this is all about today class. So now your homework for today is you have to find out the names of the states where we found evergreen forest. In India, where we found evergreen forest, आपको कल मुझे आप ये पता करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। This is all about today. In our next class, we will discuss about tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, and temperate deciduous forest. We will discuss these 3 points. Okay. Maybe we can also discuss Mediterranean and coniferous forests also. Okay. So this is all about today. Thank you so much for joining the class, everyone. Please read the chapter till page number 40, and if you face any problem, do let me know. You can ask your queries in my next class. Thank you. Bye bye.